Good afternoon, students. Today we will continue chapter number 2, role of the government in health. So far we have done the public health services and private health services. Public health services means they are funded by the government, and private health services are not funded by the government. So we have discussed about the public health services and the private health services both. Now today's topic is healthcare and equality. As you know that more and more doctors are practicing in cities because of good facilities and good income, good profit. Okay. And what is the impact of this situation? As more and more doctors are getting jobs in the private hospital because they pay good salary and they give them higher salaries as compared to the government hospitals. So what happened to maintain a good reputation? Why they charge so much? They charge so much because they have to maintain profit, because they are not given any kind of fund from the government. So they have to maintain a good reputation. They have to maintain their name, fame. For this reason, they have to make profit. And for this reason, you have experienced that in private hospitals, if you go there, you have they prescribe you many expensive medicine, many medicines which are very costly, and they give you so many tests also. At many times you see that they are not required, but they prescribe you and you have to go through that test. And if you are rich, then there is no problem, but if you are poor, it is really very difficult, and sometimes it is not possible to pay all the bills of the private hospitals for the people who are poor. Okay. Why? And to top it all, the poor people are basically lack the basic necessities of life, like clean drinking water, proper housing, and clean surroundings also. For this reason, they are more prone to illness. That means they are more likely to get diseases. Okay. So what I'm trying to say that ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स सिटीज़ में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज अच्छी होती है, उनकी इनकम अच्छी होती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की सैलरीज कंपेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ज़्यादा होती है, कई बार ज़्यादा होती है. और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिट बेस पे चलते हैं बिकॉज उनको गवर्नमेंट से कोई भी फंड एड नहीं मिलता है. दैट रीज़न वो अपनी प्रॉफिट, अपने नाम को बनाए रखने के लिए कई सारी चीज़ें अपनाते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं या अननेसेसरी मेडिसिन लिख देते हैं. इतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी लिख देते हैं, सो दैट दे कैन मेक अप द बिल्स, वो बिल्स बढ़ा सके. ताकि कई बार ऐसा देखा जाता है. चलो अगर कोई रिच पीपल है तो वो सारे डिटेल स्टडीज़ मतलब डिटेल टेस्ट वगैरह करा सकता है, बट इफ़ वो पुअर है, सिर्फ सर्दी जुकाम हुआ है या फिर उसको सिर्फ बुखार है, उसके लिए वो टेस्ट वगैरह तो कराने की क्षमता नहीं रखता है. और अगर कोई सीरियस इलनेस है तो उसके बिल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो उसके लिए वो बहुत प्रॉब्लम होती है बिल पे करने के लिए. एंड फॉर एनी रीज़न उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है. तो क्या होता है, कई बार उसको कर्ज लेना पड़ता है टू पे अप द बिल्स, एंड समटाइम्स यू हैव टू सेल ऑल हिज बिलोंगिंग्स. उसको अपना सारा घर, ज़मीन बेचना पड़ता है इलाज के लिए. सपोज अगर उसको कोई बहुत सीरियस इलनेस हो गया, कैंसर हो गया या हार्ट का कोई डिजीज़ हो गया, तो उसको ये बिल पे करने के लिए काफ़ी सारा कर्ज लेना पड़ सकता है. ओके. देन द पुअर पीपल आर मोर प्रोन टू डिजीजेस. मतलब गरीब व्यक्ति जो गरीब है, ज़्यादातर तुम देखोगे कि उनकी हाउसिंग जहाँ वो रहते हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होते हैं, एंड उनको यहाँ तक साफ पीने का पानी भी नहीं मिलता है. तो इन दिस कंडीशंस व्हाट हैपेंड, दे आर more likely to get different kind of diseases. उनको जो बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है. Okay. And sometimes what we see, lack of money is not always the issue for not getting proper and timely treatment.
In case of women, they are neglected the most when the matter is of health. Okay, what we see that only money is not the problem. Sometimes what we see that in many cases women are neglected because of their health. They are women, so they don't need proper treatment and proper health care is not required for them. In many cases we see. तो मतलब यहाँ भी हेल्थ के सेक्टर में भी विमेन के साथ इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि उनको समझा जाता है कि वो विमेन है, लड़की है, तो इसको उतनी हेल्थ की फैसिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है. बॉयज़ है तो हाँ उसका ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है. तो इन दिस केस मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे यहाँ पर भी इनइक्वालिटी है हेल्थ के सेक्टर में भी. सो व्हाट वी सी फ्रॉम द डिस्कशन दैट वेदर रिच और पुअर कोई भी हो, कोई भी नहीं चाहता कि उसको बीमारी झेलनी पड़े, किसी प्रकार का वो हेल्थ इश्यूज झेलना पड़े. सो एवरीबडी वांट टू बी इन हेल्दी कंडीशन. सो व्हाट कैन बी डन टू बी इन अ हेल्दी कंडीशन? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? As I told you that health care and health facilities, it is the responsibility of the government and it is the right of all the people to be healthy in all aspects. So health care situation in majority, what we see that majority of Indians are not in a good health. हमें proper hygiene ही नहीं पता, हम health care की क्या बात करेंगे? बहुत से लोग को यही नहीं पता कि हाथ कैसे धोते हैं. अगर पता होता तो आज हमको टीवी पे और सारे न्यूज़पेपर्स में हाथ धोने के तरीके नहीं सिखाने पड़ते. सो बेसिक हेल्थ केयर ही हमें नहीं पता, कैसे हाथ धोना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे ब्रश करना चाहिए, यही नहीं पता. तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में हेल्थ केयर सिचुएशन अच्छी नहीं है. तो इसी को लेके हमें काम करना है. एंड इन प्रेजेंट सिचुएशन एज वी ऑल सी दैट एवरीबडी इज सो वरीड अबाउट हिज हेल्थ. सो इन प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट इज गवर्नमेंट इज डूइंग टू, अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई है पूरे विश्व में? हेल्थ. अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल एंड बेसिकली द पुअर पीपल, बिकॉज दे आर हेल्पलेस. दे हैव नो एनी they have no means to save them from the disease. So it is the responsibility of the government basically. And our health is dependent on the basic amenities. क्या क्या basic amenities है ये अच्छे से देख लो. Proper diet, clean environment and good socio-economic conditions. सबसे पहले तो अच्छी खुराक होनी चाहिए. As you all know that proper diet means balanced diet along with all kind of protein, vitamin and all that. Clean environment, not only तुम्हें अपना घर साफ करके रखने से कुछ फ़ायदा नहीं अगर हम बाहर निकलते ही पूरे घर में पूरे पोल्यूशन हो, पूरी गंदगी हो. तो क्लीन इन्वायरमेंट भी होना चाहिए. गुड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स गुड इकोनॉमिक कंडीशंस. समाज में तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि तुम ये सारे प्रॉपर डाइट और क्लीन इन्वायरमेंट ले सको. प्रॉपर डाइट खाएंगे कैसे? अगर हमारे पास पैसे रहेंगे तभी तो खाएंगे. दैट इज मीन्स सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस is related to clean environment and proper diet. Okay, so in this part only up to this I will ask question based on this in the class, and tomorrow I will continue with this chapter again. Okay, see you in the class.